धन्यवाद करता हूँ कि आपने आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, और सेशन को ज्वाइन करने के बाद मैं ज़रूर अपनी लाइफ में योगी की स्टाइल को अपनाने के लिए या योगा करने के लिए आप ज़रूर प्रेरित होंगे। और आशा करता हूँ कि यहाँ से लेके ही जाएँगे, और हर साल हम इसी तरीके से योग दिवस मनाते रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि रोज़ ही मनाएँ, परंतु हर एक के बस की बात नहीं होती, तो सप्ताह में 2 दिन, 4 दिन जैसा भी हो सके आप अपना श्रमदान करें ताकि अपना शरीर स्वस्थ रहे। मैं हमारे प्रोफेसर इंचार्ज महावीर सर की तरफ से भी आप सभी का वेलकम करता हूँ। ही इज़ नॉट हियर एंड अर्जेंसी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। मैं हमारी सीनियर प्रोफेसर पिंकी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि योगा दिवस के बारे में कुछ शब्द कहें, और हमारे जो स्पीकर हैं आज के वेलकम करें। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। Okay, thank you so much, Dr. Natish. Am I audible? यस मैम, यस मैम, यू आर ऑडिबल। Yeah. Good morning, everyone. To all my dear friends, मैं एक बात कहना चाहूँगी। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में, शारीरिक काया और शांतिप्रद मन, बने सुंदर चेहरा और खुशहाल जीवन। फिर हो क्यों पीछे, करो स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त का वरदान, बस बहाओ पसीना। सुबह की ये मेहनत देखी, जीवन को आनंद है आपकी मुट्ठी में, सेहत का राज चंद। ना आएगा बुखार, ना होगा जी जुकाम, सभी बीमारियां दूर से रह करेंगी राम राम। शरीर को संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन, दिल और दिमाग से आप बनोगे सज्जन। I mean to say that happy soul, a fresh friend, and a healthy body. All three can be achieved with yoga only. Yoga is that journey which takes to you to the real self, to your soul, through your own efforts only. We, the human beings, are comprised of three segments: body, psyche, and soul. Comparing these, there are three needs: well being, information, and internal peace. Well being is a physical need, information is our mental. Yoga, an ancient but perfect science, deals with the evolution of humanity. Yoga is one of the oldest tradition of India. Yoga has been in action since old age days. The purpose of yoga is to keep people healthy and away from diseases. And yoga keeps us fit and slim. You get all the energy and power you need for. This year, for 2021 International Yoga Day, the theme of the Yoga Day is Yoga for Wellness. And Yoga International Yoga Day, it is an annual event and that has its roots in an Indian context only, but is commemorated every year on June 21st by all the countries across the world. The objective of celebrating International Yoga Day is to raise awareness about the physical benefits of yoga and also about physical health. Few years, though it has become popularly an international event, but the world itself celebrates the 7th International Yoga Day. International Yoga Day became an international event and it is recognized by the United Nations when our Prime Minister Yogendra Modi ji, in his 2014 address at UN General Assembly, proposed that a day to celebrate and practice yoga, and it must be dedicated worldwide. Since then, June 21st has been celebrated as International Yoga Day by the countries across the world. मैम शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है पिंकी मैम।
अजय सर। जी सर, मैडम की तरफ से शायद कुछ ये है प्रॉब्लम। जी। नितेश मैम को एक बार फोन करेंगे सर? जी मैम। नितेश, start the yogas. हाँ, yes मैम। Ask Sonali to start it. yes मैम, एक मिनट। सॉरी, कनेक्शन कट गया किसी वजह से। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, मेरी एल्डर सिस्टर भी हैं, मिस सोनाली सारस्वत, एंड शी इज क्वालिफाइड टेक्सटाइल डिजाइनर and is a successful businesswoman, and then turned to naturopath and now a yoga expert. And she is presently associated with the as a zonal mantri with the Bharatiya Yoga Sansthan. She is also an environment lover at heart, and also a founder member of the serving as a joint secretary at the Eco Club Faridabad. She has been working as a social activist for last many years, and towards the betterment of the issues like waste management, polythene, again, anti-polythene campaign, women safety, water saving models, intending to improve the living standards of the community and society where we live in. And she also conducts regular daily session on yoga classes, offline and online both. So we heartily welcome you, Mrs. Sonali Saraswat. Please, over to you, ma'am. Please, you can start the session. Thank you so much, and we welcome you here. And thank you, Kiran ma'am, for also Before you attending start, this. I am sorry. बीच में थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था. I'm sorry. I will finish it later on when the Sonali Saraswat finishes the yoga class. Thank you. Thank you so much, everyone. मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अपने साथ बुलाने का मौका दिया. डॉक्टर नितेश सारस्वत, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर है एनएसएस लॉ के सेंटर के, साथ ही कैप्टन परमिंदर सेठी जी, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, प्रोफेसर मनोहर सिंह जी, महावीर सिंह जी, पैट्रन एंड इंचार्ज लॉ, पिंकी मैम, और डॉक्टर किरण गुप्ता. आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ. आपने मुझे अवसर दिया अपने साथ इस दिन जोड़ने के लिए. जैसा कि आज का हमारा विषय है योगा फॉर एवरीवन. योग जो है उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है. किसी भी एज का बंदा, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई जाति विशेष का हो, किसी भी तरह की किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं है. कोई भी योग से जुड़ सकता है, किसी भी उम्र में योग कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार. पर जैसा कि हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बेहतर यही होगा कि हम जो अपनी जो अभी जनरेशन है, बच्चों में ही इसकी हैबिट डेवलप कर दी जाए. स्कूल्स में, कॉलेजेस में इन सब को अपने करिकुलम में योग को सम्मिलित करके उनको पढ़ाई के साथ साथ योग का भी ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि वे शुरू से ही स्वस्थ रह सके और योग की महिमा को समझ सके. अब हम योग के बारे में, पिंकी मैम ने बहुत कुछ बता दिया, योग क्या है क्या नहीं है. फिर भी मैं आपको छोटा सा जरा सा बताना चाहूंगी. योग और एक्सरसाइज में काफी कंफ्यूजन रहता है कि एक्सरसाइज और योग में क्या फर्क है, क्या अंतर है. एक्सरसाइज और योग में मेन ये है कि जो योग है वो हमें श्वासों के साथ कराया जाता है. उससे हमारा ब्रेथ कंट्रोल पावर बढ़ता है और हमारी आयु इससे बढ़ती है. श्वासों के साथ योग का संबंध जो है और स्थिरता के साथ किया जाता है, जो कि एक्सरसाइज में नहीं होता है. एक्सरसाइज में हमारा मेन होता है मसल्स बिल्ड करना और वेट लॉस की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रहता है. योग में जो है हमारा पूरी बॉडी का संतुलन, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का आपस में संतुलन करके ही योग किया जाता है. योग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग. अलॉन्ग विद योगा के साथ साथ मैं नेचुरोपैथी से जुड़ने के पश्चात आपको ये बताना चाहूंगी कि हम जैसे जैसे नेचर से जितना दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं. नेचर, जो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश,
कहते हैं हमारा शरीर विलीन भी पंच तत्वों में ही हो जाता है, जिस प्रकार पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, योगाभ्यास तो तरीका है ही, उसके साथ हमें कुछ अपना झुकाव जो है वो नेचर की तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा। इन पांचों तत्वों की शरीर में इम्बैलेंस होने से ही हमारे शरीर में बीमारियां आती है। धरती तत्व, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर में बदलाव ऐसे कर सकते हैं, नंगे पैर आप धरती पर चलिए, मिट्टी में कभी अपना हाथ डाल के थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, और मिट्टी ट्रीटमेंट्स, मड ट्रीटमेंट्स भी होते हैं नेचुरोपैथी में, जिससे अगर मिट्टी तत्व की कमी हो वो पूरी हो जाती है। आकाश तत्व है वो आप नेचर में नेचर की आवाज सुनिए, चिड़ियों की आवाज, बहते पानी की आवाज, क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, और हफ्ते में एक दिन फास्ट रखने से आकाश तत्व की शरीर में कमी पूरी हो जाती है। अग्नि तत्व है वो हम सूर्य के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सन गेजिंग कीजिए, उगते हुए सूर्य को थोड़ी देर अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखिए। और वायु तत्व जो है वो अगर हम खुली हवा में सुबह सैर करते हैं, कुछ हरियाली के बीच में, और साथ में कुछ प्राणायाम अगर करते हैं, तो उससे हमारे वायु तत्व की शरीर में कमी पूरी हो जाती है। जल तत्व है, पानी पीने से, शरीर को ठंडे पानी से स्नान करने से, और कई प्रकार के जल से रिलेटेड हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जिसके जरिए जल तत्व की कमी पूरी हो जाती है। ये नेचुरोपैथी के आपको मैंने बेसिक बताए हैं। शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में जहां कहीं भी गंदगी इकट्ठी होती है, उसी जगह पे हमारी बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। शरीर में जहां टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वही पार्ट बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो योग जो है वो हमें हमारे शरीर के पूरे बॉडी का मूवमेंट करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे जितने शरीर के ऑर्गन्स हैं उन पे असर करके हर शरीर के ऑर्गन को क्रियाशील बनाता है, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इससे हमारे जो शरीर के सब अंग है वो पूर्णतया सक्षम होते हैं अच्छे से कार्य करने में, और कार्यशीलता बढ़ती है तो हम बीमारियों से दूर रह पाते हैं। योग के अनगिनत फायदे हैं, कुछ आपको मैं बताना चाहूंगी। सबसे मेन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, साथ ही हमारा पोस्चर इंप्रूव करता है, और जॉइंट्स पेन, हमारे हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। साथ ही प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की क्षमता अत्यधिक बढ़ती है, और हमें नींद अच्छी आती है। इसके जरिए हमारे पूरे दिन का जो है शेड्यूल वो अच्छा बना रहता है, पूरा दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है योग करने से। तो ये तो योग के कुछ फायदे थे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योगाभ्यास, सात्विक भोजन, सकारात्मक सोच और जीवन, इन सब को फॉलो करके हम अपने जीवन को सुखमय और निरोगी बना के रख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे। खड़े हो जाएंगे आसन पर। आप लोग सब सुन पा रहे हैं? जी मैम। आसन पर खड़े हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। खड़े रहें आसन पर। अपने पैरों में 2 से 3-4 इंच का फासला कर ले। दोनों हाथ अपनी कमर पे। शुरू करेंगे हम गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं से। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे। अपने कंधे जगह पर रखें। दायां कान दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में आ जाए। श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः श्वास भरते हुए दाईं ओर, थोड़ा सा रोक के रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः श्वास भरते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। गर्दन को आगे पीछे लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे लेकर जाएं, पूरे खिंचाव के साथ रोक के रखें, क्योंकि ज्यादा समय हमारी गर्दन आगे की ओर झुकी होती है, इसलिए कुछ समय पीछे रोक के रखें खिंचाव के साथ। जो लोग स्क्रीन पे
ज्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए गर्दन की क्रियाएं अत्यंत लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट से टच करें। श्वास भरते हुए फिर से पीछे। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आ जाए एक बार। गर्दन फिर से बीच में ले आए। नेक रोटेशन करेंगे। अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे से घुमाना शुरू करें। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे आए। अपने कंधे जगह पे रखें, उनको ऊपर ना उठने दें। अपने कानों को दाएं बाएं टच करते हुए पूरे गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए। अब ऑपोजिट करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, उल्टी तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 3 बार कर लेंगे इस क्रिया को। इससे हमारे पूरे गर्दन की जितनी स्टिफनेस होती है, जकड़न, तनाव सारा दूर होके रिलैक्स हो जाती है हमारी नेक व शोल्डर मसल्स। गर्दन की क्रियाओं के बाद अब अपने शोल्डर की क्रियाएं करेंगे। अपना दायां हाथ उठाएं, ऊपर ले जाएं दायां हाथ और धीरे धीरे इसको घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाइए 5 बार एक तरफ। हाथ सीधा रखें, बीच में कोहनी से मुड़े नहीं, ध्यान रखें इस बात का। 5 बार आगे की तरफ घुमाएं, 5 बार उल्टा घुमा दीजिए। दायां हाथ वापस कमर पे रख दीजिए, बायां हाथ ऊपर ले जाइए, इसको घुमाइए 5 बार आगे। 5 बार उल्टा घुमा दीजिए। इससे हमारे पूरे शोल्डर जॉइंट्स, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में किसी भी तरह का पेन, स्टिफनेस है, वो सब रिलीज हो जाता है। वापस आ जाएंगे। अपने दोनों हाथ आगे खोलें, सीधे हाथ आगे की तरफ खोल लें। पहले सिर्फ अपनी उंगलियों को हिलाएं। सारी अपनी फिंगर्स के एक एक जॉइंट का मूवमेंट कीजिए। सूक्ष्म क्रियाओं से हमारे शरीर के हर एक भाग तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, इससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। आगे जाके आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचे रह पाते हैं हम। शरीर का दर्द इनसे खत्म होता है। अंगुलियां हिलाने के पश्चात हाथों को कलाई से मोड़ लीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए हाथ कलाई से। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को बीच में करके मुट्ठी बनाइए, घुमा दीजिए कलाई से। 5-6 बार एक तरफ कीजिए, 5-6 बार ऑपोजिट। धीरे से वापस आ जाइए। दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखेंगे ऊपर, हाथों को पूरा गोल घुमा दीजिए। घुमाते समय आगे से आप अपनी कोहनियों को मिलाइए, पीछे अपने पूरे कंधे स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। उल्टा घुमा देंगे ऑपोजिट। आशा है आप सब भी साथ में कर रहे होंगे। चलिए वापस आ जाएंगे। कुछ देर सांस को अपने सामान्य कर लीजिए, सांस भरिए और छोड़िए। बैठ जाएंगे, नहीं अभी हम कुछ खड़े होके आसन करेंगे। सॉरी, खड़े रहे अपने आसन पे। सबसे पहले हम करेंगे वृक्ष आसन, जिसको ट्री पोज भी कहा जाता है। इसमें अपना दायां पैर सीधा रखेंगे, बाएं पैर को मोड़कर
अपनी एड़ी को दाई मूल जंघा के साथ लगा लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए प्रणाम मुद्रा में ले जाएंगे और अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। पैर आपका अभी ज्यादा ऊपर ना जाए, जहां तक टच कर पा रहे हैं आप वहां तक कीजिए। हाथों को, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच दीजिए, पूरे शरीर का बैलेंस बनता है इससे। साथ ही आपका पूरा बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है एक तरीके से इस आसन से। पूरी हमारी एक एक हड्डी इससे प्रभाव में आती है। अब बायां पैर नीचे रखेंगे, दाएं पैर को मोड़ के अपनी बाई मूल जंघा के साथ लगा लीजिए, जहां तक आप लगा पाए अपनी क्षमता अनुसार। दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में रुके रहेंगे। इस पोस्चर में रुके रहे अपनी क्षमता अनुसार। जितना आपका पैर अभी जा सकता है थाई के ऊपर उतना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए साइड से वापस ले आएंगे। वृक्षासन। आज हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल में से ही कुछ आसन कर रहे हैं जो कि आयुष मंत्रालय की तरफ से आज के दिन निर्देशित किए गए हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हम कर लेंगे त्रिकोण आसन। खड़े रह के में अपने पैरों को अधिक अधिक खोलने का प्रयास कीजिए, जितना आप खोल सके। दायां पैर का पंजा सीधा रखें, बाएं पैर के पंजे को टेढ़ा कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल ले 180 डिग्री पे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते जाएंगे। प्रयास करेंगे अपने बाएं पैर को नीचे टखने से पकड़ने का, अपनी क्षमता अनुसार करें। दूसरा हाथ ऊपर सीधा, गर्दन को भी ऊपर मोड़ के ऊपर की तरफ देखेंगे। कुछ देर रुकेंगे। धीरे से श्वास भरते वापस आ जाएंगे। हाथों को भी इसी प्रकार रखें। अब अपना बायां पैर सीधा करें, दाएं पैर को मोड़ लेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अब दाईं ओर झुकते जाएं। दाएं पैर की एड़ी को अपनी क्षमता अनुसार पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा हाथ ऊपर, गर्दन को घुमा के ऊपर की ओर देखें। धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले आए, हाथों को नीचे, पैर जोड़ के वापस आ जाए सामान्य अवस्था में। नीचे बैठ जाएंगे आप। पहले हम ओम ध्वनि करेंगे। आसन लगा के बैठेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। अपनी कमर रीढ़ सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों की आप अंगूठे और पहली उंगली को आपस में जोड़कर घुटनों पे रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद, कमर रीढ़ बिल्कुल सीधी। करेंगे हम ओम ध्वनि 3 बार, 2 और 1 के अनुपात में। अर्थात जितनी देर हम ओ का जाप करेंगे उससे आधी देर म का जाप करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का जाप सुने और साथ साथ दोहराएं। श्वास भरेंगे। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं।
अपने दोनों हाथों को परस्पर आपस में रगड़े, ऊष्मा पैदा करें, अपने चेहरे पे धारण करते हुए आंखें खोल लेंगे। अब कुछ आसन हम बैठ के करेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे वक्रासन। Hope I am clearly visible to you all. यस मैम। चलिए चलिए अपने थोड़ा सा दोनों कैमरा पैरों को का आगे की ओर। कैमरा नीचे पूरा का नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है आपका, थोड़ा सा कैमरा अगर आप वो कर पाए तो। कैमरा नीचे कर दीजिए थोड़ा। अच्छा, अब बेटर है। थोड़ा होप इट्स सा बेटर नाउ। हल्का सा नीचे और कर दीजिए बस। मैं पीछे हो जाती हूँ ना। हाँ नाउ बेटर दिख रहा है। चलिए अपने पैरों को आगे खोल लेंगे, वक्रासन करेंगे। बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे, अपने दाएं पैर को मोड़ लेंगे, अपने पैर के पंजे व एड़ी को बाएं घुटने के साथ टच करके रख लेंगे। अपना बायां हाथ ऊपर उठाएं, इसको अपने पैर के ऊपर से घुमाते हुए बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा हाथ नीचे रखकर अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा दें। पूरे हमारे रीढ़ की इससे ट्विस्टिंग होती है, साथ ही हमारे पेट के सभी अंगों पे प्रेशर पड़ने से वे क्रियाशील होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रभाव में आता है। लीवर, पैंक्रियाज जैसे सभी अंग इससे क्रियाशील बनते हैं। गर्दन भी पीछे करके रखें, पीछे। चलिए वापस आ जाए। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दायां पैर खोल लें, बाएं पैर को इस प्रकार मोड़े, अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने से इसको घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा हाथ पीछे, रीढ़ सीधी, गर्दन पीछे की ओर मोड़ के देखें। एक तरफ लीवर, एक तरफ पैंक्रियास, दोनों अंगों पे पूरा इसका प्रभाव पड़ता है। धीरे से रिलीज करें, वापस आए। अब यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। नहीं, एक और आसन करेंगे, मुष्ट्रासन। बैठने में, सॉरी, वज्रासन में आ जाइए। दोनों पैरों को मोड़ के अपनी एड़ियों के ऊपर बैठिए। वज्रासन। वज्रासन एकमात्र आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। हमारे पैरों को अत्यंत शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि इससे हमारे पैरों की पिंडलियां दबती है। इससे वेरिकोस, साइटिका की जो हमारी नर्व्स है वो पूरी, इससे दबाव पड़ता है, जिससे हमारे इन रोगों में बहुत फायदा होता है। साथ ही पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है वज्रासन। खाना खाने के बाद इसका निरंतर अभ्यास करने से पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी सभी समस्याएं दूर होती है। इसका निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करें। अभी फिलहाल हम कर लेंगे उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएं, घुटनों पे आ जाएं, कंधों के बराबर अपने घुटने खोल लेंगे। पीछे एडी पंजे भी उतने ही खुले रखें, घुटनों के बराबर। अब पीछे से अपनी कमर को इस प्रकार पकड़े कि आपके अंगूठे आपकी रीढ़ पे मिलने चाहिए, रीढ़ को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। श्वास भरे और पीछे की ओर झुकेंगे, लेकिन ध्यान रखें आपकी पिंडलियां और आपकी थाइज में 90 डिग्री का एंगल बना रहे, थाइज पीछे की तरफ बेंड ना हो। श्वास भरते हुए पीछे जाएं अपनी क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाए। कमर दर्द में अत्यंत ही लाभदायक आसन, साथ ही हमारे ऊपर से फेफड़ों की क्षमता, हमारे शोल्डर्स और आर्म्स सबको अच्छे से खोल के उनकी क्षमता को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है।
यहीं से अब आप पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आ जाइए। भुजंगासन करेंगे। लेट जाए अपने आसन पर। दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे। माथा जमीन के साथ लगाइए नीचे। पीछे आपके एड़ी पंजे भी मिले रहे। अब पहले केवल अपने सर की चोटी को घुमा के रीढ़ के साथ लगा दीजिए। घुमा दीजिए अपने गर्दन को पीछे की तरफ। श्वास भरिए और आगे से ऊपर उठते जाइए। पूरा नाभि तक का भाग ऊपर उठा लेंगे। पीछे एड़ी पंजे आपके मिले रहेंगे। रुकिए इसी अवस्था में। हमारे लोअर बैक के लिए, फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभदायक आसन। गर्दन का खिंचाव पूरा पीछे की ओर रखेंगे। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाए नीचे। विश्राम कर लेंगे। शिथिलासन दाईं ओर। इसमें आप अपना दायां हाथ, दायां पैर सीधा रखेंगे। बायां हाथ और बायां पैर मोड़ के रखेंगे 90 डिग्री पे। दूसरी तरफ गर्दन भी बाईं ओर मोड़ के विश्राम की अवस्था में। शिथिलासन दाईं ओर हाई बीपी को नॉर्मल करता है। इसके साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसे रोगों में भी अत्यंत लाभ करता है शिथिलासन दाईं ओर। चलिए एडी पंजे जोड़े। दाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाए। कुछ आसन हम पीठ के बल करेंगे अब। करेंगे सेतुबंध आसन। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। पेटों को अपने से काट करने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों से अपने पैरों की टखनों को पकड़ने का प्रयास। जो ना पकड़ पाए वो दोनों हाथ आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है। श्वास भरिए और नाभि से ऊपर उठते जाएंगे। नाभि से पूरा ऊपर उठिए। नीचे हमारे पैरों के घुटने, एड़ी पंजे आपस में जुड़े रहेंगे। ब्रिज आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन। पीरियड्स की किसी भी प्रकार की समस्या, साथ ही मेनोपॉज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अत्यंत लाभदायक। साथ ही पूरा हमारी कमर के लिए, फेफड़ों के लिए, पैरों के लिए अत्यंत लाभदायक। कुछ देर रुके रहे अपनी क्षमता अनुसार। इसमें हमारे शरीर की आकृति एक ब्रिज के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम ब्रिज आसन, सेतुबंध आसन। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आराम से शरीर नीचे लाएंगे। अटकेंगे नहीं, इससे आनी हो सकती है। आराम से नीचे आ जाए। एक और आसन पीठ के बल करेंगे। पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोल लीजिए। कमल मुक्तासन। अपने दाएं पैर को मोड़िए घुटने से। दोनों हाथों से ग्रिप देकर पैर से पेट पे प्रेशर डालेंगे। श्वास भरिए, प्रेशर डालिए पेट पे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे से ऊपर उठिए। अपने नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। पैरों के पंजे आगे की ओर तान के रखें, खींचिए। कुछ देर रुकिए। धीरे धीरे वापस आइए। बायां पैर रिलीज करके नीचे खोल दीजिए। अपने बाएं पैर को मोड़िए। घुटने से अपने पेट पे प्रेशर डालिए। श्वास भरते हुए बाएं पैर से। श्वास छोड़ते आगे से उठ के अपने नाक को ऐसे लगाने का प्रयास करेंगे। कौन मुक्तासन से हमारे पेट से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती है। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, लाभदायक। साथ ही पेट की चर्बी भी से कम होती है। उठने के पश्चात रिलीज कर दे अपने पैरों को। यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। अपने दोनों पैरों को पकड़िए। दोनों हाथों से पकड़ने का श्वास भर के पैरों से पेट पे प्रेशर डालिए।
श्वास छोड़ते हुए नाक को दोनों पैरों के बीच में लाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वापस विश्राम कर लेंगे, शवासन करेंगे। शवासन हमारे शरीर को पूरे तनाव को, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बेहद लाभदायक है। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़कर लेट जाए। अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। दोनों हाथों को खोल के शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों को खोल के रुख आसमान की ओर। अपने शरीर के हर भाग को हिला डुला के शांत कर लें। पूरी पंजी हिलाएं। अपनी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं थोड़ा सा ऊपर उठा के धीरे से नीचे रखें। अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के धीरे से नीचे। गर्दन को हिला लें। आंखें एक बार खोल के बंद करें। दोनों हाथ और हथेलियों को भी थोड़ा सा ऊपर उठा के धीरे से नीचे रखें। देख लें आपके शरीर का हर भाग ढीला और शांत हो गया हो। यदि अभी भी कहीं तनाव महसूस हो, उस भाग को पुनः हिला डुला के शांत करें, तनाव रहित करें। शरीर पूरा ढीला हो जाने के पश्चात ध्यान केवल अपनी सांसों पे केंद्रित करें। श्वास का आना जाना आपकी अनुमति के बिना ना हो। मन की आंखों से अपनी आखिरी को जब जाती श्वास को देखते जाएं। साथ ही श्वास भरते में महसूस करें आपके शरीर के हर अंग के हर छोटी से छोटी कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है। आपके शरीर में जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। श्वास बाहर करने के साथ महसूस करें आपके शरीर से सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। अपने शरीर को निर्देश दें, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। जहाँ कहीं भी दिक्कत है वह भी योग साधना से जल्द ठीक हो जाएगी। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गहरे लंबे श्वास लिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर करिए। इससे आपका श्वास भी सामान्य हो जाएगा। भरे हुए श्वास में अभी कोई आसन न करें आगे। श्वास भरे, गहरा लंबा, धीरे 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 श्वास को बाहर निकालें। और बार अभ्यास करिए, गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास। आपके शरीर का सारा तनाव, सारा जलन, सारी टेंशन महसूस करें, सब निकल गई है। शरीर आपका एकदम शांत हो गया है। महसूस करें। अपनी एड़ी पंजे जोड़े, दाईं ओर से करवट लेते बैठ जाएंगे आसन पर। कर लेंगे मस्ती भरी मधुर हंसी। सारे तनाव और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हंसी बेहद लाभदायक आसन है, हास्यासन। इसमें आप दिल खोलकर पूरा खुल के हंसेंगे, सारे मिलके एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कीजिए। हंसिए सर। सभी माइक ऑन करके, आई थिंक सभी को माइक ऑन करके हंसना चाहिए। हंसने से हमारे शरीर का सारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब ठीक हो जाता है। नकली बेशक ये नकली है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत है। पूरे हमारी इससे फेशियल एक्सरसाइज के साथ है। चलिए अब 1-2 प्राणायाम, तत्पश्चात ध्यान कर लेंगे। बैठ जाए आसन लगा के।
सिंपल सा पहले कर लेंगे गहरे लंबे श्वास का प्रयास। आसन लगा के बैठे, कमर भी बिल्कुल सीधी रखें प्राणायाम में, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। रीढ़ हमेशा सीधी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। इस प्रकार से आपका अंगूठा और पहली उंगली को जोड़कर बाकी उंगलियां सीधी अपने घुटनों पे रख लीजिए। दोनों हाथ, आंखें कोमलता से बंद। पहले केवल गहरे लंबे श्वास का प्रयास करेंगे। श्वास भरिए। श्वास भरते समय महसूस आपके शरीर में हवा भर रही है। गहरा लंबा श्वास, आनंदपूर्वक श्वास भरेंगे जिससे तनाव नहीं हो। श्वास भर के धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास बाहर निकालते समय अपने नाभि को अधिक अंदर की तरफ ले जाइए। दिल के साथ लगाने का प्रयास कीजिए। गहरा लंबा श्वास, जितना श्वास भरेंगे उतना ही श्वास ध्यान रखें पूरा बाहर भी निकाले। कटिंग करवाया श्वास का श्वास भरे। बड़े दे फिर से भरिए। पांच अभ्यास करने के पश्चात वापस आए। किए हुए प्राणायाम का प्रभाव अपने शरीर पर देखें। गहरे लंबे श्वास हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही हमारे श्वसन प्रणाली को बहुत मजबूत करते हैं, शरीर के पूरे नाड़ी तंत्र को मजबूत करते हैं, हर अंग में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, साथ ही सांस बाहर फेंकते समय हमारे शरीर की सारी गंदगी सांस के जरिए बाहर भी फेंक दी जाती है। पूरे शरीर में प्राण वायु का संचार करते हैं। चलिए एक और आसान सा प्राणायाम कर लेंगे, अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बने रहने दें। बाएं घुटने पे दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अपनी दोनों पहली उंगलियों को जोड़ के अंगूठे के नीचे लगा लीजिए। बाकी दोनों उंगलियां सीधी, प्राणायाम मुद्रा। कमर रीढ़ सीधी रखें बिल्कुल। अपनी कोहनी को शरीर के साथ सटा के रखें। ध्यान रखें आसन प्राणायाम करते समय किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। कोमलता से सांस भरें, कोमलता से श्वास को बाहर करें। प्राणायाम हमारे शरीर से स्ट्रेस तनाव दूर करने के लिए होता है, इसलिए किसी प्रकार का तनाव के साथ ना करें। शुरू करेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। श्वास भरिए। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास को बाहर कर दीजिए। पुनः दाईं नासिका से श्वास भरिए। बंद करके दाईं नासिका बाईं नासिका से बाहर कर दीजिए। इसी प्रकार करते जाएंगे। बाएं से भर के दाएं से रिलीज करें, दाएं से भर के बाएं से रिलीज करें। एक लयबद्ध तरीके से करेंगे, अर्थात जितनी देर में श्वास भर रहे उतनी देर में श्वास को बाहर करें। करते जाएं। करते जाएं। बाएं से भर के दाएं से छोड़े, दाएं से भर के बाएं से छोड़े। आखिर में बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर करते हुए वापस आ जाएं। शांत बैठे। किए हुए प्राणायाम का प्रभाव अपने शरीर पर देखें। अनुलोम विलोम अत्यंत लाभदायक प्राणायाम। शरीर के हर कोई ऐसी बीमारी, कोई रोग नहीं है जिसमें इसका लाभ ना होता हो। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, शरीर के हर रोग में इसका लाभ होता है। अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपको रोगों से बचा के भी रखता है।
हर प्राणायाम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में तो अत्यंत लाभदायक है ही है। हमारे मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियों को खोल देता है, हमारी कार्यशीलता बढ़ाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, साथ ही हमारी मेमोरी शार्प रखता है। आगे जाके अल्जाइमर जैसी बीमारियों से हम बचे रह पाते हैं, इसलिए प्राणायाम का नित्य अभ्यास करते रहें। चलिए थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। बैठ जाएं आसन पर, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप कुछ देर बिना हिले डुले स्थिर अवस्था में बैठ पाए। कमर रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे ओम का जाप 1 और 1 के अनुपात में, अर्थात जितनी देर ओ का जाप करेंगे उतनी ही देर म का जाप करेंगे। पहले मौखिक फिर मानसिक। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र पे, जहां हम तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां सफेद 2 कमल की पंखुड़ियों के बीच में ओम को देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करें। ओम 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 ओम। शांत हो जाए। मानसिक जाप करेंगे ओम का। श्वास भरे तो ओ का जाप, श्वास बाहर करे तो म का जाप करते जाए मन ही मन। संकल्प ले, साधना मेरी नियमित रहे, कभी भंग ना हो, औरों को भी इससे जोड़ने का प्रयास निरंतर करते रहे। विचार अच्छे बुरे कई प्रकार के आपके मन में आएंगे, लेकिन आप न उनसे बातें करें न उलझे, केवल अपने श्वास के आने व जाने पे अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास भरने के साथ ओ का जाप करें, श्वास बाहर करने के साथ म का जाप करें। करते जाए मन ही मन। मन में अच्छे विचार लेकर आए। संसार के सभी प्राणी सुखी हो, निरोगी हो, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, इस प्रकार की कामना करें। अपने परिवारजन व अपने मित्रों के हंसते हुए चेहरे अपने सामने लेकर आए। ओम की लंबी ध्वनि करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। श्वास भरिए गहरा लंबा। ओ प्रार्थना एवं शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षैमामृतात्। ॐ ह्यः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे, मन ही मन आनंद में इस शांति का। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़े, अच्छे से ऊष्मा पैदा करें। चेहरे पे धारण करते हुए बीच में अपनी आंखें खोलें। अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को अनुभव करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच मिस सोनाली सारस्वत। आपने आज छोटा सा अभ्यास था मेरा। थैंक यू सो मच। आपने आज हमारे लॉ सेंटर 2 की फैकल्टी मेंबर्स को, हमारी पूरी फैमिली को आपने बहुत ही अच्छा जो है अनुभव करवाया। आपको योगा एक माइक बंद कर दीजिए, आप दो तरफ लॉगिन है। क्या? आपका दो तरह लॉगिन है ना, इसकी वजह से माइक आवाज कर रहा है। वन सेकंड। आज मुझे लगता है कि लॉ सेंटर 2 की पूरी फैमिली जो है वो आपके लिए दिल से आभारी है और इस योगा को अपने जिंदगी में लेकर आएंगे। जैसे मोबाइल जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग बन चुका है, उसी तरह से योगा को भी हमें अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। और आई थिंक कि जब हम लोग फिजिकल क्लासेस के लिए मिलेंगे तो लॉ सेंटर 2 की सभी फैकल्टी मेंबर्स एंड फिट होंगे, हेल्दी होंगे। और जो आपने क्रियाएं सिखाई, तो मेरा तो यही एक मानना है कि व्हेन वी इनहेल वी गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम द गॉड, एंड व्हेन वी एक्सहेल that shows that represents the service which we are giving to the world. थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप सबको पता होगा कि मिस सोनाली सारस्वती कोई हमारी मेहमान नहीं है, वो अपनी ही फैमिली में आई है, क्योंकि वो अपने नितेश है। So you are the part of our Law Center 2 family. Thank you so much, and over to Nitesh. Thank you. आप में से किसी के कोई प्रश्न हो किसी आसन को लेके, या आगे अगर आप करना चाहें रेगुलर कौन से आसन करने चाहिए, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। I think शिखा का कोई सवाल है, शिखा ने कुछ रेज किया। नमस्कार मैम, बहुत अच्छा लगा आपको, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। प्लीज बियर दिस नॉइस, थोड़ा शोर मचा रहा है। नो प्रॉब्लम, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम वो शंख प्रक्षालन के लिए मुझे पूछना था मैम, क्योंकि मैम जैसे अपन शंख प्रक्षालन होता है ना मैम। हाँ जी, वो एक क्रिया होती है, वो क्रिया होती है, शुद्ध क्रिया होती है। क्रिया मैम की हूँ मैम 2 बार ना मैम, तो इसको मैम कितने टाइम बाद मैम अपन रिपीट कर सकते हैं मैम। ये एक्चुअली सीजन चेंज पे करी जाती है, जब आपका मौसम चेंज होता है। जैसे जब आप मार्च के समय आप कीजिए इसको, या फिर आप ये सितंबर अक्टूबर के समय करनी चाहिए ये क्रिया। इससे हमारी पूरी इंटेस्टाइन्स तक की क्लीनिंग हो जाती है। जितना भी आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर तक जो मैल जमा हुआ है, टॉक्सिन्स है, वो सारे इस क्रिया से बाहर निकल जाते हैं। आपके आंतों की सफाई हो जाती है इससे। लेकिन किसी के प्रॉपर गाइडेंस में ही करना चाहिए। आप अकेले इसको बिना गाइडेंस के ना करें इस क्रिया को। मैम एक्चुअली मैम नेचुरोपैथी में मैम मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो उस समय मैं 2 बार इसको की थी मैम। तो मैम थोड़ा मुझे मालूम है इसके बारे में, आप थोड़ा सा मुझे बस ये बता दें घर में कैसे बनाए वो काढ़ा जो बनाते हैं शंख प्रक्षालन के लिए मैम। इसका काढ़ा का तो मुझे नहीं, हम तो गर्म पानी नमक के साथ बताते हैं, उसके साथ साथ आसन किए जाते हैं। और उसके साथ आपको मोशंस पूरा दिन, काफी टाइम लग जाता है, 6-7 घंटे की क्रिया है। और इसके बाद आपको पतली खिचड़ी खानी होती है घी डाल के, जिससे कि जो हमारी, क्योंकि इंटेस्टाइन्स ड्राई हो जाती है जब उनकी क्लीनिंग होती है, तो उसको वापस वो थोड़ा सा वो मोबिलिटी के लिए या उसके लिए घी के साथ खिचड़ी खाई जाती है। मैम इसमें अपन आंवले का पानी, आंवला मिला सकते हैं मैम गर्म पानी में? हाँ मिला सकते हैं आप थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपकी बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि आपकी बॉडी को क्या चीज सूटेबल है क्या नहीं है। पानी तो हर किसी को सूट हो जाता है, बाकी जैसे कई लोगों को खटाई नहीं सूट होती, कुछ समस्या हो सकती है, वो चीज देखना पड़ता है साथ में।
आपके बॉडी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ये सब डिसाइड करना पड़ता है, वरना आप गुनगुने Thank you पानी so के much, साथ ma'am. कर सकते हैं। हाँ जी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू चलिए, सो और मच। किसी का कुछ सवाल हो तो प्लीज बताएं। शायद सभी आज एक दिन में इतने सवाल नहीं पूछ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर थोड़ा सा चलिए, करेंगे आशा है प्रैक्टिस। आप सबसे, हाँ, आशा है आप आप सबसे जो आज आगे जरूर वही जल्द कंटिन्यू मिलना करें, होगा। बहुत बढ़िया। आज तो बिल्कुल कम समय के हिसाब से हमने कुछ ही आसन कर पाए हम। बाकी क्लासेस में तो हमारा पूरा 1.25 घंटे का शेड्यूल रहता है। कभी भी आपको संपर्क करना हो, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। नितेश सारस्वत से आप मेरा कांटेक्ट नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे अवसर दिया। मैनी थैंक यू मैनी सो मच। थैंक्स। लॉ सेक्टर 2 एनएसएस की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू पिंकी मैम, थैंक यू ओवीलाल सर, थैंक यू किरण मैम, थैंक यू माय colleagues and senior members who made this program a success one, and wish you all international happy yoga day, and hope you all will continue this practice in your daily life. Thank you so much. Namaskar. आई रिक्वेस्ट अजय सोनावने, प्लीज रिकॉर्डिंग बंद करो जरा, हम लॉ सेंटर 2 2 मिनट के लिए मुखबिर तो सबसे हो पाए। अजय सर का बहुत 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 दिल से थैंक यू है कि वो हर हमारे प्रोग्राम में टेक्निकल बांध पूरा